Very good evening all to all. In previous lecture, I have discussed about the Ethernet cabling techniques. Now, today I am going to discuss the Ethernet encoding techniques. We know that when data comes from data link layer to physical layer, data in the form of 1 and 0. When data come at physical layer, the physical responsibility is that it change our data into electromagnetic signal, and electromagnetic signal can be in the form of analog signal or it can be in form of digital signal. Now we know that when data moves from source to destination, it will be either analog data, either it will be the digital data. It means it depends on both side devices. It may be analog to analog communication, it may be analog to digital communication, digital to analog communication, and finally in digital to digital communication. So in communication between the two computer system, there should be a several encoding techniques, but in various encoding techniques, these two techniques are very popular. First one is your Manchester encoding techniques, and second one is your differential Manchester encoding techniques. These two techniques are very popular, बहुत ज़्यादा popular हैं, and most of the time in a UPTU examinations they have asked the question, and along with several times in alternate years I have seen in GATE examination they have asked the question from Manchester encoding or differential Manchester encoding. So this topic is very important, so we should understand how to Manchester encoding can be done and how we can do the differential Manchester encoding at the physical layer. So before going to understand differential Manchester encoding and Manchester encoding, we should have a binary data, and data are, suppose I am taking a just example 101 000 and 1. This is the binary data, and any physical device wants to transmit the data from sender to receiver side. So first this data change into a binary signal. How it will change in binary signal we will see here. We know that if in binary signal, if voltage is high, it will represented in 1. If voltage is low, it will represented in 0. This is 0. So now we are going to make the train of pulse of this binary data. This is a binary data, and we are going to first make the reference line to draw the binary signal. First bit we can see here, this is high, then we have to take the high, and next bit is 0, so this is 0, and now next bit again high, so we have to take the high voltage, and then after 3 consecutive are 0, so it will be low, and next one is high. So this is the binary diagram of this binary data. Now we are going to make the encoding of this binary data, and first we will understand the Manchester encoding. How we will encode encode this data. So for in Manchester encoding we have to understand a concept. If any voltage is high, it means agar it is 1, it will move towards the high to low. This is called high to low. And for 0, if it will represent in Manchester encoding, it will represent to 0 to high. So with the help of this concept, we can make the Manchester encoding of that binary signal. So before going to do the Manchester encoding, we have to first draw the reference line. So we should have a different color. If you have to keep the different color to draw the Manchester encoding. Okay, so now we are going to make the Manchester encoding. So
वन थिंग वी हैव टू डू दैट कि जितनी भी ट्रेन ऑफ पल्स हैं इनकी जो नेगेटिव एजेस हैं वी हैव टू ड्रॉ द रेफरेंस लाइन perpendicularly we have to drop it just like that for this interval, now for this bit interval, now for this interval and this interval, and now finally this interval. So this is called the actually bit interval. The every bit interval completed it, and then after we have to just drop lines. We have designed that this is 1, this is 0, this is 1, this is 0, 0, 0 and 1. Now we are going to Manchester encoding for that. So listen very carefully how to draw the Manchester encoding. When we will get the 1, then it will move toward the high to low. When we will move get the 0, it will move toward the low to high. This is low to high, low to high. So now first train of pulse we have get the high, and second one is low, next one is high, low, low, low and high. So before drawing the Manchester encoding हमें क्या करना होगा, सभी के मिड पॉइंट पे, बिट इंटरवल के मिड पॉइंट पे इस तरीके से वी हैव टू मेक अ डॉट बनाने के बाद वी आर गोइंग टू ड्रॉ द मैनचेस्टर एनकोडिंग फॉर फर्स्ट इंटरवल. दिस इज अ 1 के लिए क्या था हमारा, लो टू हाई, यानी सॉरी हाई टू लो, यानी वी विल स्टार्ट हाई टू लो, high to low, just we have drawn that. And now we will get the 0 will start the low to high. So this is 0 to 0, low to high. हमेशा half पे we will draw that 0 low to high. Now again we will get the 1, and this is high to low, and now we will get the again 0 for low to high, 0 for low to high, and now again 0 low to high, again 0 low to high, and now 1 is high to low. अब हम देख सकते हैं कि ये जो लाइन है, ट्रेन ऑफ पल्स हैं, ये कंटिन्यूअस होते हैं. सो दैट्स वाई टू मेक द कंटिन्यूअस सिग्नल वी हैव टू connect it. So this is the Manchester encoding of that binary signal. This is very simple, we can understand that, and I will take the another example to understand the Manchester encoding. So what we have seen, I will repeat that. If there is in 1, if you are going to make the Manchester encoding, if 1 it will go for high to low, if there is 0 it will move to low to high. So फर्स्ट मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक गिवन डेटा का बाइनरी सिग्नल ड्रॉ कर लिया. बाइनरी सिग्नल ड्रॉ करने के बाद वी आर गोइंग टू मेक द मैनचेस्टर एनकोडिंग. मैनचेस्टर एनकोडिंग के लिए हमने क्या किया कि सभी जितने भी बिट इंटरवल्स थे उनके ड्रॉप लाइंस हमने इस तरीके से कलरफुल पेन से ड्रॉ कर लिया, जिससे कि वी कैन एबल टू रिकॉग्नाइज दैट कि सारे बिट का इंटरवल किस तरीके फिक्स्ड है. सो नाउ मैनचेस्टर एनकोडिंग वी आर गोइंग टू डू. हमने क्या किया, फर्स्ट 1 के लिए अभी हमने क्या बताया, हाई टू लो, तो इसके मिड पार्ट से हाई टू लो मैंने इस तरीके से डॉट ड्रॉ कर लिया. फिर अगेन 0, फिर 0 के लिए लो टू हाई, फिर अगेन 1 हाई टू लो, फिर 0 के लिए क्या है, लो टू हाई, लो टू हाई, लो टू हाई, लो टू हाई एंड हाई. 1 के लिए हाई टू लो. थोड़ा मेरा डायग्राम खराब है, आई नो दैट, थोड़ी ड्राइंग अच्छी नहीं रही है कभी, दैट्स वाई परफेक्ट ड्राइंग नहीं है, बट यू आर ऑल वेरी परफेक्ट. आई होप आप अच्छा ड्रॉ करोगे. नाउ this is the Manchester encoding. Second concept is differential Manchester encoding. For differential Manchester encoding we have to again make the reference line. For same data I am going to make the differential Manchester encoding. डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग के लिए यू हैव टू कीप द वन कॉन्सेप्ट इज दैट कि अगर 1 है तो दैट विल बी द ट्रांजिशन चेंज, एंड 0 के लिए
नो ट्रांजिशन चेंज, नो ट्रांजिशन चेंज। अब ये तो पहला काम है, ध्यान रखना है कि 1 है तो ट्रांजिशन चेंज होगा एंड 0 है तो कोई ट्रांजिशन चेंज नहीं होगा। अब 1 के लिए दो केसेस है, आप इसको या तो हाई से लो पे स्टार्ट कर सकते हो या फिर लो से हाई पे स्टार्ट कर सकते हो, दोनों पॉसिबिलिटीज़ आपके पास है। अगर आपने 1 को हाई से लो पे स्टार्ट किया है तो आपको 0 को भी हाई से लो पे स्टार्ट करना पड़ेगा, एंड अगर आपने लो से हाई पे स्टार्ट किया है तो 0 को भी आपको क्या करना पड़ेगा, लो से हाई पे ही स्टार्ट करना पड़ेगा। बट इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे ही 0 आप ड्रॉ करोगे तो कनेक्ट करने के लिए आपको इस तरीके से अपने बाइनरी सिग्नल्स को कनेक्ट करने के लिए आपको कनेक्टिंग लाइंस बनानी पड़ेगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू मेक डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग फॉर दैट। तो हमने सपोज पहला 1 के लिए सपोज मैंने इसको स्टार्ट किया, मैंने हाई टू लो के लिए हाई टू लो लिया है। अगर 1 के लिए मैंने हाई टू लो लिया है तो 0 अगर मैं पाता हूँ नेक्स्ट, देन अगेन 0 के लिए भी हमें क्या लेना पड़ेगा, हाई टू लो। बहुत ध्यान से देखिएगा, 0 के लिए भी क्या हमने लिया है, हाई टू लो। नाउ अगेन वी विल गेट द 1 के लिए क्या मैंने बोला था, अगर दोबारा 1 आता है ट्रेन ऑफ पल्स में तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांजिशन चेंज करना पड़ेगा। हमने प्रीवियसली क्या लिया है, हाई टू लो, तो इस बार मुझे क्या लेना पड़ेगा, इस बार मुझे लेना पड़ेगा लो टू हाई, लो टू हाई, लो टू हाई। नाउ अगेन वी विल गेट द 0 के लिए क्या है, नो ट्रांजिशन चेंज। क्या ट्रांजिशन था इस बार, लो टू हाई, तो 0 के लिए क्या लेना पड़ेगा, लो टू हाई, लो टू हाई। ठीक, फिर अगेन 0, फिर ट्रांजिशन नो चेंज है, लो टू हाई, फिर 0, लो टू हाई, ठीक, लो टू हाई, एंड नाउ वी विल गेट द 1। सो 1 के लिए हमारा प्रीवियस ट्रांजिशन क्या था, लो टू हाई, तो इस बार ट्रांजिशन क्या होगा, हाई टू लो। ओके, सो जैसे मैंने एक मार्क करने के लिए मैंने लगा लिया कि यहाँ पे मेरा ट्रांजिशन था हाई से लो, तो और यहाँ पे हमारा लो तो चेंज होके हुआ लो टू हाई, एंड प्रीवियसली लो टू हाई, तो नेक्स्ट क्या होगा, हाई टू लो। तो इस तरीके से बनने के बाद नाउ ट्रेन ऑफ पल्स वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दैट। तो 0 के लिए यहाँ देखेंगे कि दिस ट्रेन ऑफ पल्स इज़ नॉट कंटिन्यू, तो वी हैव टू कंटिन्यू लाइक दैट। हमने इसको कंटिन्यू किया एंड देन ये कंटिन्यू है, फिर इसके लिए हमने इसको कंटिन्यू किया एंड इसके लिए फिर इसके लिए कंटिन्यू, एंड देन फाइनली वी विल गेट द मैनचेस्टर एनकोडिंग। सो इस तरीके से दैट्स अ वेरी इजी वे टू अंडरस्टैंड टू मेक द मैनचेस्टर एनकोडिंग एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग। बहुत सिंपल है, किताबों में जब भी आप पढ़ेंगे आप कंफ्यूज होंगे कि हालांकि इन्होंने कैसे इन्होंने ड्रॉ किया है, बट अगर लगता है कि आपको ये समझ में आ गया तो आई हैव सम मोर एग्जांपल्स आई हैव टेकन फ्रॉम द गेट पेपर। इफ़ यू वांट टू सॉल्व इट then definitely you can give the answer of the all such questions related to a Manchester co-encoding and differential Manchester encoding. Okay, so I hope one example अगर और मिल जाए तो we guys can able to understand the concept. Okay, then I am going to take the another example to draw the Manchester encoding and differential Manchester encoding. Suppose this time we have a example like this. ये one, इस बार हमारा ये डेटा है which is transfer from data link layer to physical layer. Now physical layer is going to make the Manchester encoding for that. तो first हमें क्या करना है, first we have to make the reference line. First reference line मैंने क्या लिया, डेटा लिया, बाइनरी डेटा, बाइनरी डेटा क्या है, 1 0 1 1 0 1 0 1, ये हमारा डेटा है। नाउ आई एम गोइंग टू मेक बाइनरी सिग्नल। तो बाइनरी सिग्नल के लिए हमने क्या किया, अगेन हमने इस तरीके से रेफरेंस लाइन बनाई,
एंड देन आफ्टर कैसे हम डिज़ाइन करेंगे, पहले बिट क्या है, हाई, वोल्टेज इज़ हाई, नेक्स्ट बिट क्या है, लो, सो लो, फिर नेक्स्ट बिट क्या है, हाई, हाई, फिर नेक्स्ट बिट क्या है, हाई, फिर नेक्स्ट बिट क्या है, लो, फिर नेक्स्ट बिट क्या है, हाई, फिर नेक्स्ट बिट क्या है, लो, फिर नेक्स्ट बिट क्या है, हाई। सो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बिट इंटरवल हमेशा जो है ट्रेन ऑफ पल्स का सेम होता है। वन, दिस इज कॉल्ड अ बिट इंटरवल, दिस इज अ बिट इंटरवल, दिस इज 1 0 1 1 0 1 0 1. Now we are going to make the Manchester encoding for that. Manchester encoding, अब थोड़े कलरफुल पेन रखिएगा जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो वी आर गोइंग टू मेक द Manchester encoding for that. Manchester encoding. Manchester encoding के लिए आपको क्या करना है, सबकी जो बिट इंटरवल की ड्रॉप लाइंस हैं, वी हैव टू मेक लाइक दिस। पहले एक ड्रॉप लाइंस बना लीजिए डॉट 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 करके। ये ध्यान रखिएगा कि जैसी बिट इंटरवल कंप्लीट हो तुरंत एक ड्रॉप लाइन इस तरीके से बना लीजिएगा, जिससे कि हमारा प्रॉपर ट्रेन ऑफ पल्स हमारे एनकोडिंग टेक्निक्स की दिख सके। ओके, सो नाउ वी हैव मेड दिस, तो पहला हम लोग मैनचेस्टर एनकोडिंग करने जा रहे हैं। तो मैनचेस्टर एनकोडिंग फिर से एक बार देख लीजिएगा कि अगर 1 है तो क्या होता है, हाई टू लो, और 0 है तो क्या होगा, लो टू हाई। इसको हाई टू लो बोलते हैं, इसको लो टू हाई बोलते हैं। फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि हर बिट इंटरवल का क्या करेंगे, मिड पॉइंट डिसाइड कर लेंगे। मिड पॉइंट इस तरीके से हमने बना लिया। अब 1 है तो 1 के लिए क्या है, हाई टू लो, तो हमने ब्लैक पेन ले लिया, हाई टू लो। फिर 0 के लिए क्या है, लो टू हाई। हमेशा यहाँ से याद रखिएगा स्टार्टिंग और एंडिंग ऑफ बिट इंटरवल। फिर 1 के लिए क्या है, हाई टू लो। फिर बिट इंटरवल के लिए क्या है, फिर क्या है, 1 हाई टू लो। फिर 0 के लिए क्या है, लो टू हाई। फिर 1 के लिए क्या है, हाई टू लो। इस तरीके से प्रॉपर कनेक्ट कर दीजिएगा। फिर 0 के लिए क्या है, लो टू हाई, एंड फिर 1 के लिए क्या है, हाई टू लो। अब आप एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पे हमारा जो सिग्नल कंटिन्यू नहीं है, देन वी हैव टू कंटिन्यू लाइक दिस। सो नाउ our train of pulse is continuing flowing, and so this is the Manchester encoding of that binary data. अब फिर से एक बार देख लेते हैं डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो मैंने बोला कि 1 पे नो ट्रांजिशन चेंज, 1 पे ट्रांजिशन चेंज एंड 0 पे नो चेंज। तो कैसे स्टार्ट करते हैं, 1 को हाई से लो भी ले सकते हैं और लो से हाई भी ले सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा कि अगर आपने 0 को हाई से लो लिया है, 1 को हाई से लो लिया है, तो 0 को भी हाई से लो लेना पड़ेगा, और ये क्या है, लो से हाई। तो चलिए ड्रॉ करते हैं डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग। डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, मिड पॉइंट ड्रॉ कर लिया। सभी बिट इंटरवल का मिड पॉइंट ध्यान से देखिएगा, मिड पॉइंट ड्रॉ कर लिया, मिड पॉइंट, इसीलिए मैंने इसको बनाया था। सो पहला अगर मान लीजिए हमने लिया है हाई टू लो, इस बार लिया है, तो हाई टू लो, क्योंकि 1 है पहला बिट, तो हाई टू लो लिया, तो मुझे क्या मिला, 0। नेक्स्ट हमारा क्या है, 0, तो 0 के लिए भी क्या होगा, जीरो के लिए क्या होगा, हाई टू लो। देखिए 0 के लिए क्या होगा, हाई टू लो। तो 0 के लिए क्या बनाया मैंने, हाई टू लो। ठीक, ये क्या था, हम यहाँ पे एच लिख देते हैं। फिर क्या मिला, नेक्स्ट ट्रांजिशन क्या है, फिर 1 है, तो 1 पे क्या बोला था मैंने, ट्रांजिशन चेंज, तो इस बार क्या होगा, लो। तो यानी क्या करना होगा, प्रीवियस क्या है, हाई टू लो, तो इस बार क्या करना पड़ेगा, लो टू हाई। ओके, फिर अगेन 1 है, तो इस बार फिर ट्रांजिशन चेंज होगा, तो प्रीवियस क्या है, लो टू हाई, तो इस बार क्या होगा, हाई टू लो, ट्रांजिशन चेंज, इस तरीके से। फिर आ गया 0 के लिए क्या लिया है मैंने, हाई टू लो, तो इसके लिए भी मुझे क्या लेना पड़ेगा,
हाई टू लो, क्योंकि 0 के लिए, अगर 1 के लिए हाई टू लो है तो 0 के लिए भी हाई टू लो लेना पड़ेगा। फिर 1 आ गया तो वी कैन सी ईयर फिर 1 आ गया। प्रीवियस क्या है, हाई टू लो, तो इस बार क्या होगा, लो टू हाई, लो टू हाई हो गया। फिर 0 आ गया, 0 के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, लो टू हाई। एंड फिर प्रीवियस क्या है, ये हाई है, ये लो है, तो इस बार भी इसको 1 आ गया है तो इसको क्या करना पड़ेगा, हाई से लो। इस तरीके से हमने क्या किया, इसको बना लिया। फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर अपने ट्रेन ऑफ पल्स को कंटिन्यू करने के लिए हम यहाँ पे इस तरीके से चेक कर लेंगे कहीं से हमारा ट्रेन ऑफ पल्स डिसकंटिन्यू तो नहीं है। एंड देन आफ्टर checking that, we are able to say that we have made the Manchester encoding and differential Manchester encoding. I hope बहुत easy है, लेकिन किताबों में बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से बना देते हैं, रूल्स वगैरह इस तरीके से दिखाते हैं कि समझना थोड़ा मुश्किल है। मैं आई होप आपको बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। अगर आप इसको बना लें तो आई होप बहुत अच्छा रहेगा, उसको बना के आप हमें भेज दीजिएगा। ये क्वेश्चंस जो हैं गेट एग्जामिनेशंस के हैं 3 और एक आपकी यूपीटी एग्जामिनेशंस का है। तो इस तरीके से मैंने पहला क्या रखा है, रूल्स बता दिए हैं मैनचेस्टर इनकोडिंग के लिए, दूसरा है डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग के लिए, और तीसरा ये न्यूमेरिकल है जिसको आपको करके भेजना है। तो आई होप सो आप सभी को ईथरनेट एनकोडिंग टेक्निक्स पता चल गई कि ये दोनों टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनचेस्टर एनकोडिंग जो है बेसिकली ईथरनेट में, और जो मैं आपको पढ़ाने अभी बताऊंगा 802.4 में यूज होता है मैनचेस्टर एनकोडिंग, बट IEEE 802.5 में डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग होता है। तो विद द हेल्प ऑफ दीज encoding techniques we are able to send the data in digital form from one side to another side. So I hope so अच्छा लगा होगा आपको, तो इसको कंटिन्यू करिएगा और इस क्वेश्चंस को करने के बाद हमें इसको भेज दीजिएगा। थैंक यू सो मच।